لاڑکانہ کالج سے تعلق رکھنے والے اپنے تمام سینئر صاحب کے حضرات، کیمرہ مین اور رپورٹرز کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، مان بخشا، میں اس پر آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پی ٹی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی جلسے کے بعد کوئٹہ جلسے میں شرکت کے لیے بائی روڈ سفر فرما رہے ہیں۔ حیدرآباد، سانگھڑ، نواب شاہ کے دورے کے بعد آج لاڑکانہ میں میڈیا سے خطاب فرمائیں گے اور کل انشاءاللہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو لاڑکانہ آمد پر دل کی گہرائی سے دیتا ہوں، انہوں نے مہمان بخشا، عزت بخشی۔ میں درخواست کروں گا پی ڈی ایم کے صدر اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ لاڑکانہ کی میڈیا کے ساتھ خطاب فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا دل سے ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، ہمیں موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا دو روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں، وہ ضمانتوں پر رہا ہے۔ دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیرتے ہیں۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو غیر آئینی حکومت
اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے، کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات اور شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغرور ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے، اور پھر اس انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہماری نظر اس پہلو پر بھی نظر کا خیر کہ شاہدانہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے، اور پی ٹی آئی کا کر پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانے میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے، یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نااہلی کے نتیجے، نالائقی کے نتیجے جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے۔ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کی اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا، لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر
हमारा एक भरपूर और इस्तकामत के साथ एक मौक़िफ़ है और इसको आगे लेकर जाएंगे। 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह क्वेटा का जलसा आम है और उसके बाद भी जलसों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा करते हैं, वन बाय वन ले लेंगे। एक सवाल यहाँ से प्लीज, इस तरह का यहाँ से शुरू कर लेंगे। एक सवाल यहाँ साहब ये बताएं कि पीडीएम तो एक इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को आप इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पर आगे जाकर देखिए, इब्तिदाई तौर पर तो ये सिर्फ एक तहरीक है और मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके ऊपर एक तहरीक के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आगे जाकर इत्तेहाद में क्या शक्लें बन सकती हैं, इंतखाबात में क्या सूरत हाल बन सकती है, वो खारिज इम्कान तो नहीं हो सकता, लेकिन सरदस्त हम यही कहेंगे कि ये इत्तेहाद एक तहरीक है और मूवमेंट है ताकि इस मुल्क में आइन की और कानून की अमलदारी आए और जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। कराची के पीडीएम के जलसे में मियां नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। नहीं, ये लफ्ज़ गलत है कि नहीं करने दी गई। उन्होंने एक पैगाम दे दिया था गुजरावाला में, मुल्क में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने खुद नहीं चाहा था कि मैं हर जगह जो है वीडियो पे खिताब करता रहूँ। पार्टी मौजूद है, खैदीन मौजूद हैं, लिहाजा ये बात कहना बहुत ही गलत होगा कि उनको करने नहीं दी गई। अगर वो बिल करना चाहते तो कौन उसको रोकता, कौन सी जमात है, कौन सी शख्सियत है कि जो उनको एहतराम नहीं। वहाँ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे कोई असबाब है, क्या मामला है? इस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहीं पहले से एक बिल्कुल बलूचिस्तान का शेड्यूल दिया हुआ था। बहरहाल हमारे उनसे राब्ते मौजूद हैं और इसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल है आपसे कि एक तो आपने सवाल ये निशान लगाया कि इंक्वायरी उसको वेलकम से गवर्नमेंट ने किया, तो वो तो तय कर दिया है आर्मी चीफ ने कि कोर कमांडर का पोस्ट देगा, तो आप पहले ही नहीं तय करते कि क्या उस रिपोर्ट को आप मानेंगे या ये कोर कमांडर की रिपोर्ट जो है कोई हिस्से नहीं रखेगी पीडीएम के आगे? अभी मैंने तो सवाल दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा मीडिया पे चल रहा था कि जो पीडीएम के लीडर हैं उनकी लाइफ रिस्क का ट्रेड है बहुत ज़्यादा, तो उस बल्कि यहाँ तक कहा है कुछ चैनल्स ने कि इंडिया जो है इसमें कोलैबोरेट हो सकता है तो बलूचिस्तान के पास। मुझे ये बताएं कि सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं नजर तब आए, तो हमने जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने किस रास्ते से जाना है, ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उनका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त नहीं, ताकि हम अपने रज़ाकारों को मैदान में उतारें और उनको बताएं कि तुम मुल्क की खजाने से तनख्वाहें लेते हो, मराहत देते हो और तुमसे जो नहीं हो सकता वो मेरे एक बेदस्तफा गरीब कारकुन और उसके रज़ाकार से हो सकता है। अगला लाएबल आपका क्या होगा? पार्लियामेंट में ऐसे बिलों से आप इस्तीफे देंगे? मेरे ख्याल इस वक्त हमारे सामने अगर कोई गुंजाइश है तो ये इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। और जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ 2-3 और ऑप्शन हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और इसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। बाकी मुजाहिर की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही है पीडीएम जलसों के बाद। दूसरी बात ये कि कराची में जो आईजी का वाक़या हुआ, जो पुलिस अफसरान ने जो एक्शन लिया, जो शुक्र को चाहे की दरख्वास्त दी, उनके बारे में भी ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये 100% की याद है पीडीएम की, वो अपनी करप्शन को क्रेडिट देना चाहते हैं। इसके बारे में
इसमें चाल वाली कोई शक्ल आप मुझे बता दें, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। नहीं निज़ाम को छोड़ें, वो चाल वाली शक्ल मुझे बता दें। चाल की अपनी शक्लें होती हैं ना, तो कोई ऐसी शक्ल हमें बता दी जाए कि जिसको हम भी, हमारा अकल भी तस्लीम कर ले। जो केसेस जारी है गिरफ्तारी भुट्टो का है, तो वो उससे बचने के लिए और सवाल ये है कि इसमें पुलिस ने एक तरफा तौर पर खुद रद्द अमल दिया है। तो जब वो खुद रद्द अमल दे रहे हैं और यहाँ तक कि हर ज़िले के SSP और DPO जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं और वो समझते हैं कि हम ज़हनी तौर पर इतने दबाव में हैं इस वाक़े की वजह से कि हम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से कासिर हैं, तो ये रद्द-ए-अमल पुलिस का आया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध में तो एक बात उछल पड़ी है, ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है। हर जगह पर सिविल इंतजामिया के इख्तियारात पर मिलिट्री के वहाँ जो अफसरान हैं उनकी गिरफ्त मौजूद है। ये सूरत हाल हर जगह पैदा हो सकती है, लिहाजा इस रविश से दस्तबरदार हुआ जाए ताकि हम एक मुल्क बनकर आगे चल सकें। आपकी जो तहरीक है वो आइन की बालादस्ती के लिए है और आप ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आइन हकूक में रह कर काम करें। इस तहरीक के जो आगाज़ है उसके बाद हमें ये पेश कि पहले आम लोग अगवा होते थे, अब IG उठाया जा रहा है, तो आप इस सूरत हाल में कौन को कैसे? मेरे ख्याल में यही गले पड़े। पहले आपकी मेहरबानी, आप सिंध के जजीरों के आवाज़ खारा उठाया, लेकिन अभी सिंध में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिसको अगवा गुम किया गया है, कोई कोर्ट किसी तरह उसका मालूम नहीं होता है, इस पर आपकी PDM का क्या? देखिए, लापता अफराद एक मुस्तकिल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, बलोच एरियाज हों, पश्तून एरियाज हों, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि पंजाब में भी, और मुसलसल उनके प्यारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी बार बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन शकील कल्ब क़ुव्वतें होती हैं कि जो इन लोगों के इस गर्व पर वो खामोश बैठे रहते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते कि जिनके बूढ़े माँ बाप साल हर साल से 8-8, 10-10 साल, 15-15 सालों से वो रो रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो अब ज़ख्मी हो गई हैं, अश्क बहाते बहाते उनके गम में। ऐसे ऐसे लोग लापता हैं कि जिनके बूढ़े वालिदैन वफ़ात पा चुके उनके कर्म में, लेकिन इनको रहम नहीं आ रहा कि इन ख़ानदानों और इनके बुज़ुर्गों के ऊपर रहम किया जाए। अगर वो वाकई मुल्ज़िम, अगर वो कातिल हैं, अगर वो रियासत के दुश्मन हैं, तो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें सब सियासतदानों के लिए हैं कि उनको रोज़ जो है पकड़ कर उनके कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको उनकी तस्दीर वहाँ पर की जाए। अगर वाकई ऐसे लोग हैं कि जो रियासत के दुश्मन हैं, रियासत के खिलाफ उनके पास दलाइल मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो लायक खुली अदालत में पेश करें उसको। अगर वो वाकई ऐसा मुजरिम है, वालिदैन को तो पता चल जाएगा कि मेरा बेटा जो है वो मुजरिम था, इसलिए फांसी चढ़ गया। लेकिन इस तरह रोज़ रोज़ उनके घर में मौत है, रोज़ रोज़ के उनके घर में मातम है और 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं उस ज़माने से मातम। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इमरान खान को कहते हैं कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, क्योंकि आप उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। मौलाना राशिद मंसूर जो इलेक्शन हार गए वो भी यही कहते थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने धांधली करके जो इंतखाबात जीते हैं। दोस्तों, क्या आप उनको भी सिलेक्टेड MLA कहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के? मेरी एक बात सुनिए, एक बात पीपल्स पार्टी सिंध में जीत चुकी है, फिर कहती है कि धांधली हुई। आप तो एक सीट की बात कर रहे हैं, एक फर्द की बात कर रहे हैं, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट ग्रुप है असेंबली का, उसके बावजूद कहता है कि धांधली हुई। लिहाजा इंडिविजुअल्स के मसले पे नहीं है ऐसी बात। मेरे कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो गए हैं, जो हारा है वो भी मैदान में है, तो मजमूई तौर पर इंतखाबात की बात है। देखिए, अगर 60% और 40% का फर्क या 70% और 30% का फर्क, तो ये फर्क अगर इसमें इतनी कम बेशी हो कि जो कौम का मजमूई फैसला है वो मुतासर ना हो,
तो पूरी दुनिया में इस तरह की कम बेशी इंतखाबात में कबूल कर ली जाती है कि हक के हुक्मरान सर्व नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी पार्टी के पास 200 सीटें हैं और 200 के बजाय हमारे पास 90 सीटें आ जाए, हम कहें कि 10 पे दान दी हुई है, चूँकि मेरी अक्सरियत नहीं जा रही उससे, मेरा हक हुक्मरानी जो आई मुझे हक देता है वो नहीं जा रहा, तो इस तरह पूरी दुनिया में किसी कदर ये चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि जिसके पास 30% वोट नहीं है उसको 70% वोट दे दिया, और जिसके पास 70% वोट का हक है उनको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर पार्टियाँ जो जीती हुई पार्टियाँ हैं वो भी इसको दादी कह रही हैं, मैदान अमल में है। लिहाजा ये मसला इंडिविजुअल का नहीं है, और नहीं अब 2 साल हो गए हैं हम मैदान अमल में हैं, और पहले दिन से ही हमारा एक मौक़िफ़ सामने आया है। 2 साल के बाद आप पढ़े लिखे लोगों को वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने लेटर जारी कर दिया है कि हमें जो है ताउन किया जाए और वापस लाया जाए। क्या कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ तकरीर करेंगे? ये उनकी मर्जी है, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने चाहा कि खिताब हो मौलाना साहब, वफाकी हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाई के साथ साथ मीडिया को टारगेट का निशाना बना रही है। उसका नतीजा ये है कि गुज़श्ता 52 को बंदिश की है, तो इससे ये क्या इज़हार की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है? हजरत, हमने तो हमेशा मीडिया के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। जहाँ सियासत है वहाँ मीडिया है, जहाँ सियासत है वहाँ साहब, जहाँ बादशाहतें हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप हैं वहाँ सहाफ़त नहीं है, कंट्रोल सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त नहीं है। तो ऐसी हुकूमत कि जिसमें जमहूरियत हो, जिसको एहसास हो कि मुल्क जो है वो सबका है, तो उसमें हम एहसास रखते हैं कि मीर शफीउर रहमान साहब क्यों जेल, हमारे बड़े नामवर लोग, उनको क्यों चैनल से निकाला गया, उनकी खिदमत जो है उनको क्यों फेंक दिया गया, और वो अब अपने चैनल छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर वो अपने चैनल बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने गलत ढूंढा है मीडिया में। लिहाजा मीडिया की आज़ादी और एक आला मेयार और आला एक क्वालिटी के साथ हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए, और उसके लिए शाना बशाना करें। देखिए वो आज पहले मतलब नहीं कह रहे, ये बातें बहुत पुरानी हैं। ज़बानों को तरजीह दी जाए तालीम के सिलसिले में, ये कौन सी पार्टी है कि जिसका ये मौक़िफ़ ना हो? और उर्दू है कौमी ज़बान, ठीक है, हमें कोई इनकार नहीं उससे। मुझे जिस तरह उर्दू आती है और मैं उर्दू बोलता हूँ, चाहिए कि मेरे बच्चों को पश्तो भी उसी तरह है। अब अजीब बात है कि मैं पश्तून हूँ, मेरे बच्चों की पश्तो बहुत कमज़ोर पढ़ लेते हैं। आप सिंध के लोग हैं, आपके बच्चों को शायद सिंधी ज़बान लिखनी ना आए, लेकिन आपको उर्दू आती है। तो इस हवाले से तमाम जमातों के मंशूर में लिखा हुआ है कि इलाकाई ज़बानों में बच्चों की तालीम का एक रुझान बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से ये बात तो हम सिर्फ उर्दू के बारे में नहीं कही गई, हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है। मेरे ख्याल में आप सिंधी लोग मेरे तो आपको पश्तो नहीं आएगी, तो आप उर्दू में बात करेंगे, तो मेरे पठान को भी सिंधी नहीं आएगी, तो वो भी आपके साथ उर्दू में बात करेगा। तो इस तरह उर्दू एक राब्ते की ज़बान है, जिससे ना हमें कोई दुश्मनी है और न इससे कोई मफर है। अब आप अफ़गानिस्तान जाएँ, अफ़गानिस्तान के पश्तों में फ़ारसी ज़बान ज़्यादा मिली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पश्तों के अंदर उर्दू ज़बान ज़्यादा मिली हुई है। पंजाबी के अल्फाज आपको उसमें मिलते हैं। तो जहाँ जो लोग जो कौमें इकट्ठी रहती हैं, उनके अल्फाज एक दूसरे की ज़बान में मुख्तलिफ होते रहते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उर्दू मसला नहीं है, उर्दू तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाकाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे खुद जरदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़कर वापस आया तो मुझे न उर्दू आती थी और न सिंधी आती थी। बात सीखे। वफाक गुजरा कह रहे हैं कि पीटीएम उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने गठन किए और नेब से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए
उन्होंने ये ग्रुप बनाया और ये तहरीक शुरू की है। देखिए, वो अपनी करप्शन की बात क्यों नहीं करते? वो सीपैक का चेयरमैन जो है उसको तो बचाना चाहते हैं और उसको तो मुस्तस्ना रखना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ इल्जामात हैं, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, BRT का मसला है, बिलियन ट्रीज का मसला है, मालम जबे का मसला है जी, कितने उनके खिलाफ इस वक्त मैदान, एक भी पेशी नहीं हुए, केस चल ही नहीं रहे उनके जी। तो किसी को इस तरह चोर कहना कि आप 2001 से मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई, मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों का शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नताइज नहीं है, तो इसका माना यह है कि ये नेकनीयती पर मबनी एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। सर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बीजेपी की जो तहरीक चल रही है वो NRO के लिए चल रही है, तो सब भाईजान एक बात जहन में रखें, मेरी शराफत इजाज़त नहीं दी तो अगर मैं आपको कुछ और जवाब देते बात बुनियादी ये है कि NRO वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको NRO नहीं दे रहे। आप लोग PTM के प्लेटफॉर्म पे एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें नून लीग भी शामिल है, तो नून लीग पे उसका एक बयानी है जिसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो वो स्पेशली पाक फौज आर्मी जी उनके नाम नहीं कर पाते, कह रहे हैं कि सारी सूरत उन लोगों को जुड़ा लगा रहे हैं। तो उसके बाद कराची में जो कैप्टन सफदर और महर नवाज का जो वाक़या पेश आया है उसमें भी ये तासुब किया जा रहा है कि वही लोगों का हाल है। तो उसके बाद वही लोग जब नोटिस लेते हैं, जो तहकीकात का वो हुक्म देते हैं, तो उस पर मामला डिफिट हो जाता है। वही लोग जब जिनको विचार कराया जाता है, अगर वही लोग तहकीकात करके और एक रिपोर्ट दें जो आपको तस्लीम होगी, इस पर तो मैं बात कर चुका हूँ। इब्तिदाई में इस पर मैंने बात की है। एक सवाल है मेरा, वो सवाल आपके सामने रख दिया है, अब आप तबसरा करें। अगर मेरा आप पर इल्ज़ाम हो कि तुम इस काम के मुजरिम हो और आप ही को मैं उसके इंक्वायरी पे लगा दूँ, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जैसे पहले अपने फवायद लेकर, नून लीग ने भी काफ़ी सारे फायदे लेकर आपको तहरीक आगे करके वापस चले गए, तो इस बार कितनी फीसद यकीन दहानी आपको उन्होंने करवाई है? आपके तक बेटा, ये सहाफत की दुनिया में एक सवाल फरसुदा भी हो जाए ना तो आप लोगों ने दोबारा मेरी बात तो सुन लेना। देखो, मेरी बात ये है, वो इवेंट JUI और तमाम पार्टियां, उन्होंने सिंध में इस्तेमाल किया, पंजाब में इस्तेमाल किया और वहाँ स्टेज पर सब हमारे साथ मौजूद रहे। इवेंट JUI कहता है। आज जो इवेंट है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका है, लिहाजा इस किस्म के पहले वो आपको छोड़ गए, सबसे बचा 14 दिन अगर हम वहाँ से मैंने जो आपके सामने सवाल रखा है, इस पे सारी चीजें तो बहुत आ रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीपैक चल रहा था, कभी थोड़ी देर के लिए बहुत हो जाता है, फिर चल जाता है। PTM और सीपैक पे अपना क्या किस हद तक जो है आप PTM वाले मानते हैं या कुछ मंसूबे के सीपैक के कई पहलू। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक इक़्तिसादी तौर पर एक रीढ़ की हड्डी रखती है हमारे लिए। उसके फौरी फ़वाइद भी हैं और दूररस उसके मफादात भी हैं पाकिस्तान के लिए। खारजा पॉलिसी आपकी तब कामयाब होती है जब आप इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत हों और दूसरी दुनिया के मफादात आप अपने साथ वाबस्ता करें। अगर आप इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर हैं और आप बैरूनी लोग दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करने में नाकाम हैं, तो फिर आप नाकाम ही नाकाम हैं। ये जो हमारे सीपैक मनसूबा था, इस पर तो तमाम पार्टियों का इत्तेफाक था, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस पर इत्तेफाक पाया गया था। लेकिन ये हुकूमत आई और इस हुकूमत ने अपनी तरजीहात तब्दील कर दी।
اور پالیسی یہ دے دی کہ میگا پروجیکٹ کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہیں، لہذا مائکرو لیول پر آ جائیں اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ متعارف کرانے کے بعد کی بجائے آئیں ہم کٹے مرغی انڈے وغیرہ کی بات کریں اور اس لیول پر معیشت کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی آئی کے جو ایم ایل ایز ہیں اس کے آواز آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے جو منتخب نمائندے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اس کے ایم ایل اے آواز دے رہے ہیں۔ آپ کے پی ڈی ایم سے اس کے ایم ایل اے جو رابطہ کیا ہے اسی پر جو شدید ناراض قیادت سے کہ وہ جو منتخب لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ لے آئے ہیں وہ حکومت چلاتے ہیں، اس ایم ایل اے کا کوئی پی ڈی ایم سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں منتخب ہی نہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں، جو باہر سے لائے گئے ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر بنائے گئے ہیں وہ بھی منتخب نہیں ہیں۔ تو جو غیر منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتخب لوگ دونوں کی کیٹیگری ایک ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں تصور کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام